الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر وللہ الحمد. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی بن اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. تمام انبیاء پر درود و سلام ہو. بالخصوص میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محسن انسانیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج ہم اس عیدگاہ میں جمع ہوئے ہیں. ہر کسی کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرانا ہے. ہر کسی کا مقصد اللہ کو راضی کرانا اور اپنا بدلہ، اپنا اجر حاصل کرنا ہے. خوش نصیب ہے جو ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھا اور آج عیدگاہ میں حاضر ہو کر پروردگار عالم سے التجا رہے ہیں: اے اللہ، تو ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما. اے الہ العالمین، تو آج ہم بدلہ ہمیں عطا فرما دے. میرے بھائیوں، آج عید کا دن ان روزے داروں کے لیے ہے جو ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھے. آج کا عید کا دن ان مسلمانوں کے لیے ہے جو رمضان میں تراویح کا بھی اہتمام کیا، روزوں کا بھی اہتمام کیا، صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کیا اور ہر نیک کام میں رہنے کی کوشش کی اور ہر نیک کام میں اپنا ہاتھ بٹایا. مگر افسوس ان لوگوں پر ہے جو ماہ رمضان کو پا کر نہ تو ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اور نہ ہی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ ہی تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی نیک کام کرتے ہیں. ان کا مقصد تو بس کسی کی غلطیاں نکالنا، کسی کی ٹھوکے رہنا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے آج کا عید کا دن نہیں ہے. میرے بھائیوں، گفتگو طویل ہو رہی ہے. آپ کو بتاتے چلو، ہم عید گاہ آئے ہیں تو عید کے مسائل بھی جانتے چلیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عید گاہ چل کر آنا، پیدل آنا سب سے زیادہ بہتر اور افضل ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا: عید گاہ آنے کے بعد، عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب تم اپنے گھروں کو واپس لوٹو تو راستہ تبدیل کر کے لوٹو. جس راستے سے آئے ہو اس راستے سے واپس نہ ہو بلکہ دوسرا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں، آج کل ہم لوگ ہر عید کے موقع پر عید کی مبارکبادی دیتے ہیں، عید کی مبارکبادی پیش کریں. ہر کوئی کہتا ہے: السلام علیکم، خیریت، عید مبارک. میرے بھائیوں، کیا ہم نے کبھی قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں پڑھی؟ قرآن و حدیث کی تعلیم پڑھنے سے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے سے یہ بات روشن کی طرح یہاں ہوتی ہے. عید مبارک کہنے سے زیادہ بہتر ہے. ہمیں صحیح ترمذی اور تمام منا کی روایت ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمل کیا کرتے تھے. جب کبھی بھی عید کا موقع آتا تو ہمارے صحابہ عید مبارک نہیں کہا کرتے تھے بلکہ اچھے الفاظ میں کہا کرتے تھے: تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم. آج ہم نے اس سنت کو پسے کچھ ڈال دیا. آج ہم نے اس سنت کو پسے کچھ ڈال کے عید مبارک جیسے عام الفاظ کو اپنے زبانوں پر استعمال کرنا شروع کر دیا. میرے بھائیوں، عید کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عید مبارک کہنا کیسا ہے. بعض علماء نے اسے جائز قرار دیا تو بعض علماء نے کہا کہ یہ یہود کی ایک علامت ہے. یہود کہا کرتے تھے جو اسلام کے پیچھے وہ کہا کرتے تھے عید مبارک. اس لیے بہتر ہے کہ ہم مسلمان عید مبارک کہنے کے بجائے تقبل اللہ منا ومنکم کہا کریں. میرے بھائیوں، بعض علماء نے کہا عید مبارک کہنے میں کوئی گنجائش نہیں. بہرحال ایک مختلف مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے چھڑنا مناسب نہیں. بس یہ کہنا چاہتا ہوں، سنت رسول سے جو ثابت ہوا ہے، جو اچھے الفاظ ہے: تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو، تمہارے نیکیوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے. یہ بہترین دعا ہے. اور ہماری عید کو قبول فرمائے، ہمارے آپس میں ملنے کو قبول فرمائے. اس دعا کو ہمیں عام کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، آج کے خطبہ عید میں آپ کے سامنے کچھ نصیحتاً کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. اور سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات بتاتا چلوں، ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں.
हम अपने नफ्स का मुहासबा करें, हमने माह रमजान के अंदर क्या किया, क्या नहीं किया, हमने कितने आमाल में इजाफा किया, हमने कितना ईमान अपनाया, हमने अल्लाह को कहाँ तक खुश किया। मेरे भाइयों, एक ताजिर की मिसाल ले लीजिए, एक व्यापार की मिसाल ले लीजिए। एक ताजिर सुबह से शाम तक पैसे आता है, शाम में अपने पैसों का हिसाब करता है, आज मैंने कितना नफा हासिल किया, कितना नुकसान उठाया, कितने पैसों का फायदा हुआ, कितने पैसों का नुकसान हुआ। मेरे जो इसी तरह हम हर दिन सोने से पहले ये मुहासबा करना है कि आज हमने कितनी नमाजें पढ़ी, किसको तकलीफ पहुंचाई और किसके हक में दुआ की, किसको सदका वगैरह। आइए मेरे भाइयों, आपके सामने सूरह कहफ की आयत पढ़ता हूँ। अल्माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल और दौलत, ये हमारे बच्चे, ये दुनिया की जितनी चीजें हैं, अल्माल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये दुनिया की ऐशो आरामगाह की चीजें हैं, ये दो दिन की चीजें हैं। इंसान इन दो दिन की चीजों के ऊपर मुहासबा करता है कि मैंने कितना नफा हासिल, मैंने कितना नहीं, आज मुझे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। आज हम दुनिया के मालों में ये काम करते हैं। अल्माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैर। अल्लाह ने क्या फरमाया, वल बाक़ियातुस सालिहातु खैर। हक़ीक़ी कामयाबी, हक़ीक़ी मुहासबा वो है कि इंसान ये सोचे कि आज मैंने क्या किया, आज मुझसे कौन सी चीज हुई और कौन सा गुनाह हुआ। गुनाह होने पर शर्मिंदगी का एहसास हो और अल्लाह से तौबा करे। अगर अच्छाई किया है तो अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ताला मुझे हर काम अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, बताने की बातें बहुत हैं, आइए और आगे चलते हैं। हम एक और हदीस आपके सामने, एक और आयत आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ऐ दुनिया वालों, अल्लाह ताला दुनिया वालों से, अल्लाह पर ईमान लाने वालों से मुखातब, मुसलमानों से मुखातब है, कहता है क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने खानदान को जहन्नम के आग से बचाओ, जहन्नम के ईंधन से बचाओ। मेरे भाइयों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ये डूबेंगे के तहत आज हम क्या कर रहे हैं, खुद गुनहगार हैं और अपने घरों को भी गुनहगार बना रहे हैं। खुद नमाजों की पाबंदी नहीं करते और अपने अहयार को भी नमाज की तलकीन नहीं कराते। रमजान के महीने में घर में एक पर दो रोजा रखता है तो बेटी रोजा नहीं रखती, बाप रखता है तो बीवी रोजा नहीं रखती, उसकी माँ या उसकी बीवी या उसकी बेटी कोई न कोई रोजा नहीं रखती। ये कौन से मुसलमान है? नारा कि अल्लाह ने चुकी का अपने आप को और अपने खानदान को, अपने अहलीकुम से मुराद बीवी आ गई, बच्चे आ गए, माँ बाप आ गए, सब आ गए, सबको जहन्नम की आग बचाओ। आज हमने जहन्नम की आग से बचाने के बजाय आज हम अपने बच्चों को जहन्नम की जानिब धकेल रहे हैं। वो कैसे मेरे भाइयों, कोई बाप कहता है कि मेरी बेटी कमजोर रहेगी, जवान है, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, और कोई काम करने वाला कहता है मैं रोजा रखूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे पैसा नहीं मिलेगा, तो अपने आप को जहन्नम की आग से कहाया। मेरे भाइयों, साल के 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में 11 महीने इंसान कमाता है, खाता है, पीता है, मगर एक महीना आता है, रमजान का महीना आता है, सब कुछ पैसा, माल दौलत, अल्माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया के तहत अमल करता है। क्या आपने सूरह हदीस को नहीं पढ़ा? ये लमो अन्नमल हयातुद दुनिया वलाइब, ये दुनिया खेलो तमाशा की दुनिया है। मेरे भाइयों, आपके सामने एक और हदीस का तस्करा करना मुनासिब समझता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, सही मुस्लिम की हदीस है, कुल मुस्लिम अल मुस्लिम की, हर मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक हुआ करते हैं। हर मुसलमान के एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक होते हैं। आइए सुनते हैं। सबसे पहला, इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, जब आपस में कोई मुसलमान मुलाकात करे, मिले तो सलाम को आम करे, सलाम छोटा बड़े को सलाम करे, और बड़ों पर चाहिए, बड़ों पर फर्ज बनता है कि अपने छोटे भाई का जवाब दे और उसके साथ नरमी के साथ पेश आए, शफ़क़त से पेश आए। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि। और दूसरी जो बात बताई अल्लाह के रसूल ने, वइज़ा दाअका फ़ाजिबहु, और जब कभी तुम्हें कोई मुसलमान भाई दावत फ़ाजिबहु, तो तुम पर वाजिब बनता है कि तुम उसकी दावत को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन किराम और मुहद्दिसीन किराम के मुख्तलिफ पहलू हैं कि कौन दावत कबूल करना, कौन सी नहीं। ये वक्त नहीं है और हमारे पास बेचारे रोजेदार भाई धूप में बैठे हुए हैं, तो जिसकी बिना पर मैं कुछ इसकी तफसील बताना नहीं चाहता हूँ। अलबत्ता इतना कहना चाहता हूँ, अगर कोई मुसलमान हमें हलाल चीज की दावत दे तो उस दावत का कबूल करना हम पर वाजिब हुआ करता है। इसी तरह तीसरी चीज अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वही फंसह लहू, जब तुम्हें कोई नसीहत करने को कहे तो तुम पर जरूरी बनता है कि तुम नसीहत करो, तुम उसे नसीहत करो। और फरमाया, जब तुम्हें नसीहत की जाए तो तुम उस नसीहत को कबूल करो, उस नसीहत का इनकार मत करो।
میرے بھائیوں اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ سنانا مناسب سمجھتا ہوں. نصیحت کی بات آ گئی تو ایک بات کہتے چلو. نصیحت چاہے عالم کرے جاہل، شیطان کرے یا فرشتہ، ہر ایک کی نصیحت اگر اچھی ہو تو لینا چاہیے. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان ایتل کو سکھاتا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے شیطان نے ایتل کو سکھایا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ہریرہ چاہے شیطان ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہیں دین کی کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو اسے قبول کر لو، اس کا انکار کرو. میرے بھائیوں اگر عالم ہو جاہل، شیطان ہو فرشتہ، کوئی اللہ کا بزرگ ہو یا نہ ہو، اگر تمہیں کوئی اچھی بات بتاتا ہے، دین کی بات بتاتا ہے، تو تم جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کرو اور اس کا انکار نہ کرو. جس طرح کہ ابو لہب نے کہا تھا اللہ کے رسول جب بھی وہ اپنی پہاڑی پہ کھڑا ہو کر وہ جو نصیحت کیا کرتے تو ابو لہب کہا کرتا تھا اے لوگوں یہ محمد دیوانہ ہو گیا ہے، تم اس کی باتیں مت مانا کرو. ابو لہب کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کا دشمن ہو گیا تھا، دین کا دشمن ہو گیا تھا. نبی نے اللہ تعالیٰ کو پارے میں آخری پارے کے اندر ایک سورت اس کے نام سے نازل کرنی پڑی، سورۃ اللہ کے نام سے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اس کی تفصیل پڑھو آپ کو معلوم ہو جائے گا اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے کیسے ظلم سے سمجھائے تھے. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بددعا کے طور پہ، لعنت کے طور پہ کہا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے بعد برباد ہو گئے. میرے بھائیو اسی لیے کہا جاتا ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ، جب تمہیں کوئی نصیحت کرے، جب تمہیں کوئی دین کی بات بتائے تو تم اس بات کو قبول کرو، اس کا انکار نہ ہو، گرچہ کہ وہ بات تمہیں کڑوی ہی کیوں نہ لگتی ہو. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ. یہ چھوٹی چیز ہے، جب مسلمان بھائی چھینکتا ہے، کسی کو چھینک آتی ہے تو چھینک کا جواب دو الحمدللہ کے ذریعے. میرے بھائیوں یہاں پر بہت سے ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے کہا چھینک ایسی ہے، چھینک کی وجہ سے انسان مر سکتا ہے. احادیث مبارکہ کی تعلیم ہر حکمت پر ہے، کوئی بھی تعلیم ایسی نہیں جو حکمت سے خالی ہو. حدیث اندر جو بھی تعلیم دی جاتی ہے، جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے. یہاں پر چھینک کا جواب دینے کے لیے کہا گیا الحمدللہ، اور جو حدیث سنتا ہے اس کا جواب دے، پھر چھینکنے والے کو پھر دوبارہ جواب دے. کیوں؟ اس لیے کہ چھینک کی وجہ سے انسان کی دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور انسان مرتے مرتے زندہ ہو جاتا ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مرتے مرتے بچا لیا. میرے بھائیوں اسی طرح پانچواں حق ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْ. جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے اس کی بیمار خوشی کی جائے، اس کے گھر جایا جائے اور اس کی عیادت کی جائے. مگر آج کیا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ ہمارے قوم میں کوئی بیمار ہوتا کسی کو کاروکار کا خبر نہیں ہوتی. اگر کسی کو خبر ہوتی ہے تو کوئی مسلمان بھائی اس کی جا کر عیادت نہیں کرتا. جبکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے وَإِذَا مَرِضَ، جب تم میں سے کوئی بھی ہو جائے تو فَعُودُوا، تو اس کی عیادت کرو، اس کے گھر جاؤ، اس کو تسلی دو، اس کے حق میں دعا کرو، اس کی بیمار خوشی کرو. میرے بھائیوں اور اسی طرح سے حق ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوهُ، جب تم میں سے کوئی مر جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو تم اس کی اتباع کرو، یعنی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو. الحمدللہ ہمارا ماحول تو بہت بہتر ہے، جنازے کی نماز میں شامل ہوتے ہیں. میرے بھائیوں یہ حدیث ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے، یہ باتیں بتاتی ہے کہ مسلمان اگر ان 6 باتوں کو اپنائے، 6 باتوں کو اپنے اندر عقیدوں میں محفوظ کر لے تو ایک مسلمان کی زندگی، انسان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. اگر وہ ان 6 باتوں کو چھوڑ دیں یا قرآن حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ دیں یا حق بتانے والے اچھے شخص کی باتوں کو ماننے سے چھوڑ دیں یا انکار کریں یا اس پر خامخواہ کی ترغیبیں کریں، وہ ایسا بولا ایسا بولا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا تھا. میرے بھائیوں آپ ایک مثال دیتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کی. حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، دن آتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگوں، اے میرے بچے والوں، اے میرے قوم والوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، تم مجھ پر ایمان لاؤ. تو ان کے قوم والوں نے کیا کہا؟ ان کے قوم والوں نے کہا اے نوح کل تک تو ہمارے ساتھ کھیلتا تھا، آج تو نبی کہتا ہے. بڑے لوگوں نے کہا تو ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے، ہمارے کو جواب دیتا، تو ہمارے سامنے رہو کہ ہمارے کو جواب دیتا، تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ میرے بھائیوں آپ نے دیکھا قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا وہ قوم جس نے اپنے نبی کی بات کو انکارا، اپنے نبی کو ٹھکرایا، اپنی نبی کی باتوں کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے اس قوم کو پانی میں ڈبو کے مار دیا. آج تک اس قوم کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں. کیوں؟ صرف ایک وجہ، انہوں نے اپنے عالم کی بات کو نہیں مانی، اس کو ٹھکرا دیا. اللہ تعالیٰ نے اسی قوم پر عذاب نازل کیا. میرے بھائیوں مکہ والوں نے کیا نہیں کیا اللہ کے نبی کے ساتھ؟ مکہ والوں نے کیا نہیں کیا؟
اللہ के रसूल से फरमाया, अय अल्लाह के नबी, अगर तुम नबी होने दावा करते हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। अल्लाह ताला से अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाह के नबी ने उंगली से इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया। तब भी वो नबी ईमान नहीं लाए तो अल्लाह ताला ने अपने अजाब में लपेट लिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के फैसलों में, अल्लाह के अजाब में देर है, अंधेर नहीं। अल्लाह का कानून में देर हो सकती है, देर नहीं। जो इंसान जो काम करता है उसकी सजा मिलकर रहेगी। अगर कोई अच्छा काम करता है तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसे उसका बदला जरूर देगा। अगर कोई बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलता, तो अगर दुनिया में उसको सजा ना मिले तो यकीन मानो कि आखिरत के दिन उसे सजा मिलेगी। मेरे भाइयों, इसी तरह आपके सामने एक और शख्स दूर करता चलो, एक और शख्स दूर करता चलो। लोग कहते हैं, उलमा हर बात कहते हैं, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐ उलमा, ऐ लोगों जो तुम कहते हो उस पर अमल नहीं करते। तो मेरे भाइयों, इस सिलसिले में एक बात बताता चलो, सबसे पहले जन्नत में जाने वाले और सबसे पहले जहन्नम में जाने वाला। अगर कोई आलिम तुम्हें अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के खातिर कोई दीन की बात बताता है तो तुम पर जरूरी बनता है कि तुम अमल करो। अगर वो दावे के लिए, अपनी शोहरत के लिए लोग कहे कि फला आलिम बड़ा है, अच्छा है, अच्छी अच्छी बातें बोलता है, अगर वो शोहरत के लिए करता है तो उसका वो बयान दुनिया की शोहरत हासिल कर लेगा। दुनिया वाले कहेंगे ये आलिम है, बड़ा आलिम है, फला आलिम है, मगर उसे अल्लाह आलिम नहीं कहेगा, बल्कि अल्लाह ताला सबसे पहले उसे जहन्नम में डालेगा। भाइयों, बातें बहुत सी हैं। और ईद के सिलसिले में एक बात बताता चलो, हम लोग आमतौर पर ईद का वक्त गलत मुतय्यन करते हैं, छोटा बड़ी बात होती है। जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मुताला करो। सहाबा किराम है कि जिंदू रज़ियल्लाहु ताला की मशहूर हदीस है इस सिलसिले में। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर की नमाज सूरज के 2 नेज़ा होने पर पढ़ा करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि हम 4 होने पर नमाज पढ़ रहे हैं। एक और बात बताता चलो, इन्नद-दीन युस्रुन, बेशक दीन इस्लाम आसान है। युस्रुन आसान है, दीन इस्लाम मुश्किल नहीं है। दीन इस्लाम किसी मुश्किल में डालना नहीं चाहता। आप बेचारे रोजेदार रोजे की हालत में 1 महीना रोजे की भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं, मगर हम यही वक्त रखें, ये धूप के अंदर से बर्दाश्त करेंगे। ऐसी छोड़ ही तो हम आराम से बैठ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, मगर धूप रही तो गर्मी में कौन सी बात हमारी सही से होगी। इस तरह धूप निकल जाए तो हमारी बातें कहाँ दुरुस्त होंगी। हम अल्लाह ताला से अपना अज्र कैसे मांग पाएंगे। मांगना चाहेंगे मगर पसीना और गर्मी की वजह से सही से मांग नहीं पाएंगे। मेरे भाइयों, छोटा वो बड़ी बात है, मगर इस्लाम की हक की बात है, हक की बात है। बवांगे दुहल आज की ईद में बात करता हूँ। इससे पहले जब मैं छोटा बच्चा था, ईद उल अज़हा का खुतबा, ईद का खुतबा मैंने दिया था। उस मौके पर भी ये बात कही थी कि ईद के टाइम को हमें बदलने की सख्त जरूरत है। अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस पर सुने और संजीदगी के साथ सोचने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, छोटा मोटा बड़ी बात हुई हो, अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो तो मुझे कोई मुजाहिदा नहीं। इस्लाम की हक बात बताने में डरने नहीं है, इस्लाम की हक बात बताने में हम उलमा डरने वाले नहीं है। हमसे कौम वाले कहते हैं गौ के बच्चे हो गौ को लेकर चलो, गौ के बच्चे हो ये बातें मत बताओ, मत बताओ, मगर ये बातें वो बातें कब तक ना बताएं, जब तक अपने हाथ में चिड़ियों को पहन के बैठे। मेरे भाइयों, अगर हमारी बात गलत हो तो कुरान हदीस खुद मुताला कीजिए। अगर तब भी समझ में न आए तो अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया में पढ़ाइए और उसके बाद अमल करने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, बताने की बातें बहुत सारी हैं और मैंने इस सिलसिले में आपके सामने बता दिया। आखिर में 2 बातें बता देता हूँ। 15 मिनट का वक्त हो चुका है और 5 मिनट वक्त लेकर अपनी जगह ले लूंगा। मेरे भाइयों, ईद के बाद हमें क्या करना चाहिए? ईद के बाद हमें क्या करना चाहिए? ईद के बाद हमें कुछ नहीं, वो कुछ करना है हम जो माह रमजान में क्या करते थे। जिस तरह हम नमाजों का इंतजाम करते थे में, उसी तरह रमजान के बाद भी करना है, ईद के बाद भी करना है। जिस तरह हम रमजान में रोजों का इंतजाम किया करते थे, उसी तरह रमजान के बाद पीर और जुमेरात और एक महीने में सीम रखने की कोशिश करना है। और माह शव्वाल की बहुत बड़ी फजीलत आई है। इस महीने के अंदर जो 6 रोजे रखता है, अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला उस बंदे के पूरे रोजे रखने के बराबर सवाब अदा कर देगा। मेरे भाइयों, ईद के बाद हम रोजों का इंतजाम, नफिल रोजों का इंतजाम करें जहाँ तक हो सके, और इसी तरह हर गुनाह से बचने की कोशिश करना है। मगर एक वाकया मेरे जहनों में आज भी घूम रहे हैं। चंद साल कबल चंद नौजवान भाई बहुत सारे जगहों पर पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में ईद के फौरन बाद या तो फिल्म देखने जाते हैं या तफरीह करने जाते हैं। मेरे भाइयों, ईद करने के बाद तफरीह वगैरह का मौका नहीं।
इबादत करो और मजीद 3 दिन तक तकबीरात का एहतमाम करो, दुआएं करो। ये बहुत ही अच्छा मौका है, दुआएं करो, पता नहीं हमारी किस्मत कब बदलेगी, हमारी दुआओं को अल्लाह ताला कब सुन लेगा। इसलिए हमें ईद के बाद ना तो फिल्म देखने जाना है और ना ही तफरीह के लिए, बल्कि एक जगह रहकर अल्लाह और रसूल की बातें सुनने की कोशिश करो, दीन पर अमल करने की कोशिश करो और अल्लाह का तो जहाँ तक हो सके राजी करने की कोशिश करो। मेरे भाई एक और जो सबसे आखिरी बात है वो है इतिहास की बात। ये ईद अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान, मुसलमानों के दरमियान कायम करके ये पैगाम दे रहा है, ऐ मुसलमानों, साल में दो दिन आप तमाम मुसलमान भाई एक जगह जमा होते हैं। इसका मकसद क्या है? हमारी दिलों से अदावतें, दुश्मनियां, नफरतों को दूर करना है। ये किस्से खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मेरे भाइयों, ये किस्से में खड़े होकर हमें पैगाम दे रहे हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे दिल में ना तो कीना है, ना तो कपट है, ना हसद है, ना जलन है। हम मुसलमान आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले हैं, हम मुसलमान आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले हैं और कुरान मजीद की पारा नंबर 4 की आयत पर अमल करने वाले हैं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, हम इस आयत पर अमल करने वाले हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ लोगों तमाम के तमाम मिलकर इत्तिहाद अपनाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, आपस में मिल जाओ। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, इख्तिलाफात मत करो, दुश्मनियां मत करो, फिरकों में मत बंटो, आपस में एक दूसरे को माफ करने की आदत हो। अगर कोई मुसलमान किसी को कुछ कह देता है, अगर कोई बड़े से छोटा कह देता है, तो बड़े भाई को चाहिए कि मेरा छोटा भाई इसे माफ कर दिया जाए। अगर कोई बड़ा भाई किसी छोटे भाई को कुछ कहता है, तो छोटे पर फर्ज बनता है कि ये मुझसे बड़ा है, मुझ पर फर्ज बनता है कि मैं बड़े भाई होने के नाते इसे माफ कर दूं। बर्दाश्त करने की आदत तभी हमारी जिंदगी सही से चलेगी। मेरे भाइयों, आखिर में बात बताते चलो, खुतबा ईद में आज मैंने आपके सामने मुख्तलिफ बातें रखी, किसी खास मौजू को अपनाया। आप हादिस का मुताला करते हैं तो अल्लाह के रसूल से यही साबित होता है, अल्लाह के रसूल ने ईद के मौके पर कोई खास खुतबा नहीं दिया, खुतबा यही दिया अल्लाह से डरो। और जो अपने माशरे में जो बुराइयां फैली होती थी उन सबको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के खुतबे में और जुमा के खुतबे में बयान किया करते थे। कि आप ये नहीं कहना कि मौलवी साहब ने मुख्तलिफ बातें दी, किसी एक मौजू पे नहीं कहा। मैंने आज सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा करने की कोशिश की है और ये उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात भी आइंदा ईदों से अपने ईद के टाइम में तब्दीली लाने की जरूर कोशिश करेंगे। छोटा मोह बड़ी बात हो सकती है, मगर ये इस्लाम की बात है, मगर ये इस्लाम की बात है, हक्कानियत है, हर मबनी है, हक पर मबनी है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आज मैंने ये सुन्नत को जिंदा करने की कोशिश की है, आइंदा सालों से हम भी की सुन्नत को जिंदा करने की कोशिश करेंगे। पता नहीं हम आइंदा कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा। बुढ़ों के सामने जवान जवान बच्चे भी जा रहे हैं। मेरे भाइयों, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा रखना है। लिहाजा बेहतर यह है कि हमारी मौत आने से पहले हम नेक अमाल करें, अल्लाह को राजी करें और अल्लाह ताला को खुश करने की कोशिश। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को जहाँ तक हो सके दीन इस्लाम पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ इलाहुल आमीन, जब हमारा खात्मा तो दीन इस्लाम पर हो, जब तक तो हमें इस दुनिया में जिंदा रखे, दीन इस्लाम पर जिंदा रख। इलाहुल आमीन, हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आमीन, हम तमाम मुसलमान भाइयों को हर सच बात कहने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आमीन, हमारे मुसलमान भाइयों के उलमाए दीन के दिलों को ईमान से मुनव्वर कर दे और उनके दिलों को